Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started with the topic. So these are the list of the topics that I'll be discussing with you. Today is 5th of August. So the first topic is increased Manrega budget spending. The second is new consumer law for B2C sectors. This is the second topic. The third topic is violating human right in the valley. The fourth topic is US policy on pandemic and its impact on the educations. And the UN suspension of basically the United States has suspended H-1B visas. So these are the five important topics that I'll be discussing. Apart from this, we'll have some MC question and the explanation of yesterday questions. तो कल के जो सवाल थे उसके explanation भी आपको बताऊंगा. And heartiest congratulations to all the students who have qualified Civil Services 2019. So this is the number of students who have qualified in the examination. Okay, the top and among the Aptly Plus Academy, the 11th rank was secured by Nupur Goyal. So you can check more details on Aptly Plus site, and you can also watch the mock interview on our YouTube channel. So what you can do, you can subscribe to our Aptly Plus Academy, and you can find the details of the list of the playlist which is there for the mock interviews. So you can watch there, and do not forget to like a hit button on this video. So the first topic is increased in the NREGS budget spending. This is there in the Indian Express, and this is very important for your general studies paper 2. A question can be directly asked, an analytical question can be asked, and some concept driven question can be also asked in the prelims examination. So first, due to COVID-19 pandemic, what has happened that many of the migrant laborers, many of the migrant workers have this shifted to their native town and places, and this has increased basically the spending which due to which has increased in the Manrega. So how it has increased? Because the number of the people has increased and the demand for the work has increased. So with the demand of the unskilled worker which is arising in Manrega, the Ministry of Rural Development has spent 72% of its total budget in the financial year of the first quarter. So this is something for the first time in the history of Ministry of Rural Development that they have spent almost 72%. Almost 72% amount has been used. Now talking about how much money was spent. So the total allocation was this much, 1,22,398 crore rupees, and ministry has utilized for time being, they have utilized 87,611 crore rupees. This is a figure from April 11 to 19. This is 2020, right? And in this contrast, according to the data available, the controller and account general जो कि ministry spend करते हैं, उन्होंने बताया कि 29% of the budgetary allocation is coming from the first quarter, right? And 39 in the first quarter of 2018 and 32% in the first quarter of 2017-18. So this is a total calculation with the year of basically talking about the 18-19 and 17-18, right? नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स पार्टिसिपेशन, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं. सो इन द लास्ट 4 month, first 4 month, what has happened in the financial year, from April 1st to August 4, 5.36 crore of the household have availed मनरेगा वर्क. और जो डेटा हमारे पास है मनरेगा की पोर्टल में, उनके मुताबिक 45,253 crore were spent in the rural job guarantee scheme. So this date is from 1st of April to the 4th of August, from where the data has been taken, against the 61 crore that was allocated in the budgetary spend in February 1. और इस साल बजट में बहुत सारी जो अमाउंट है वो कम भी एलोकेट की गई, वो आगे मैं आपको बताऊंगा. सो हाउ मच बजट वाज एलोकेटेड? तो गवर्नमेंट ने इस बार कुछ कम अमाउंट भी एलोकेट किए थे मनरेगा को, बट दे अनाउंस इनिशियली 40,000 करोड़ एंड दे हैव इंक्रीज्ड इट इन द इकोनॉमिक पैकेज. जो गवर्नमेंट ने बाद में स्टिमुलस पैकेज दिया पेंडेमिक को लेकर के, उसमें चीज़ों को इंक्रीज कर दी गई और उन टोटल जो इसकी जो बजट थी मनरेगा की, दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, राइट. नाउ मिनिस्ट्री वाइज स्पेंडिंग की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो कि इन्वॉल्व है पेंडेमिक को लेकर के, स्पेशल क्योर को लेकर के, एंड द थिंग्स दे आर इन्वॉल्व मोर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने 27% से ज़्यादा स्पेंडिंग की है फर्स्ट क्वार्टर में. तो सबसे पहले मैं बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया अपने फर्स्ट क्वार्टर में. उसके अलावा जो 27% से ऊपर जिन्होंने स्पेंड किया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. दे हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 43% ऑफ देयर फंड इन द फर्स्ट क्वार्टर. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर 36%. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, दिस इज 36%, राइट. Health and Family Welfare 32%, Labor and Employment is 30%, and the Ministry of Railway, they have spent almost 28%. This is in the first quarter, right? This is for the first quarter.
Now coming to the second news, that is new consumer law for B2C sector. So there have been regulation regarding the B2 sectors in the online sector. And the news that is coming from the Consumer Protection Act, that it will be regulating the operation of e-commerce players in India. We have two important e-commerce players. One is Amazon and other is Flipkart. So the B2C online sector would come under the new regulation, that is new consumer law ambits, or all kind of online services irrespective of their size, मोबाइल ऐप सर्विसेज, कोई भी किसी तरह से जो भी सर्विसेज दे रही हैं, ऑल बिजनेसेस रनिंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इवन इधर इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम पे भी कोई कर रहे हैं, so everything would be coming under the preview of the new Consumer Protection Act. So a question can be directly asked in the prelims examination, और आपसे मेंस में एनालिटिकल सवाल भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से. So before I proceed, you need to understand what is business to consumer. B2C होता क्या है? Basically ये term use की जाती है जहाँ पे जो process है selling of goods and services are directly between the business and the consumer. So entity जो काम कर रही है, जो इसमें involved है, वो directly consumer at the end. That would be the end user of the product. So most company that sell directly to the consumer can be referred to B2C company. So B2C companies में Amazon, Flipkart, मिंत्रा, ऐसी जितनी भी कंपनीज हैं, दे कैन बी टेकन एज द B2C कंपनीज. बात करें एडवांटेजेस ऑफ द लॉ की, ये जो कानून बनने वाली है उसके क्या एडवांटेजेस होंगे. सो फर्स्ट, द लेजिस्लेशन एम टू क्लीन अप द सेगमेंट, जो भी बेसिकली कस्टमर्स की जो रिड्रेशल है या फिर जो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है उसको बरकरार रखने में. एंड द रेगुलेशन विल प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट एंड द डिग्निटी ऑफ द ब्रांड. क्यों होता क्या है, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे जो सेलर्स हैं दे डोंट हैव द अकाउंटेबिलिटी. कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते हो, तो उस वहाँ पे एक कस्टमर अगर चीटेड है ही कैन नॉट रिटर्न द प्रोडक्ट. सो दैट बिकम अ चैलेंज फॉर द कस्टमर की जो ट्रस्ट इश्यूज है उस ब्रांड के साथ या उस पूरे एंटिटी के साथ, चाहे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट्स हैं. सो इट समवेयर डेटोरेट द क्वालिटी एंड द इंप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड. तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अंडर दिस रेगुलेशन द एंटायर थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. एडवांटेजेस क्या क्या हैं ई कॉमर्स के इंडिया में स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इन द कॉस्ट रिडक्शन टू द कंज्यूमर. और जो ई कॉमर्स है, दे हैव इमर्ज्ड एज द फास्ट ग्रोइंग ट्रेड चैनल अवेलेबल इन द cross border trade of the goods and services. So e-commerce has somewhere definitely has augmented the lifestyle and the quality of living of the people. और जो लोगों को कई ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं एंड दे गेट एन एम्पल सर्विसेज इन द मेजर सिटीज़, चाहे जो Tier 2 सिटीज़ हो, Tier 3 सिटीज़ हो, हर जगह पे इसकी रीच है. सो द रीच ऑफ द ई कॉमर्स हैज़ ऑल्सो एक्सपैंडेड इन इंडिया. Now the third topic is violating human rights in the valley. So this is regarding the first anniversary of the abrogation of Article 370. तो आपको आज के हिंदू में ये एडिटोरियल मिल जाएगी जहाँ पे बात की गई है जो कॉन्सिक्वेंसेस इमर्ज हुए हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ये जो हमारा स्पेशल स्टेटस देती है जम्मू कश्मीर को. अभी भी अगर बात करें जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है, india.gov.in, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे इस आर्टिकल 370 को मेंशन किया हुआ है. राइट, it has already been abrogated, but government need to update it. That's still pending in the website. I don't know, we do not know what is the intention of the government, but as of now, constitutionally this article has been abrogated. अब कुछ टू इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं इस एडिटोरियल में. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द हाउस अरेस्ट. कई ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के जिनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया था. तो हाउस अरेस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए. हाउस अरेस्ट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्रिमिनल मैनुअल. कहीं भी इसकी मैनुअल के बारे में जिक्र नहीं है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर है टू डिक्लेयर द बिल्डिंग एज अ सब जेल. हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे जो इस जगह पे है पुलिस की अथॉरिटी, पुलिस के प्रीव्यू में, पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में, ही कैन नॉट मूव आउट. इट वुड बी लाइक अ जेल ओनली. एंड सच as डिक्लेरेशन रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सब जेल्स. और जो रेसिडेंट है लाइक जैसे सब जेल ऑटोमेटिकली इज इन डिटेंशन एंड कॉमनली नोन एज हाउस अरेस्ट. तो उनको डिटेन किया जाता है पूरी पुलिस के प्रीव्यू में अगर किसी की हाउस है. सो दैट इज बाउंड्रीड बाय द सिक्योरिटी ऑफ पुलिस एंड ही कैन नॉट मूव आउट विद द बाउंड्री ऑफ हिज हाउस. राइट, सो दिस इज कॉल्ड द हाउस अरेस्ट एंड दिस हैज बीन डिलिबरेटली यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर स्टेट गवर्नमेंट्स. बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशंस की, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो दूसरा कंसर्न है, जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू लोगों को
किसी भी चीज़ के अरेस्ट करके उनको रखा जाता है, नज़रबंद रखे जाते हैं. एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रोग्नोसिस दैट द फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन द पास्ट कंडक्ट. को किसी इंडिविजुअल के पास्ट कंडक्ट को या कुछ ऐसे हेट स्पीच हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो बेसिकली प्रिवेंशन करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए दिस एक्शन हैज़ बीन टेकन. तो ऑल प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लिए गए हैं PSN, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक डायरेक्टोरियन कहा है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसीजर सेफगार्ड दैट मस्ट फॉलो द स्टेट एंड डिटेंशन ऑर्डर विल बी क्वेश्ड. तो सरकार को ये देखने की ज़रूरत है, अगर कोई इलीगल तरीके से किसी को प्रिवेंटिव डिटेन किया जाता है और वो गलत साबित होती है, तो उसकी जो प्रिवेंशन है वो भी कम्प्लीटली कैंसल्ड एंड कॉस्ट. सो मोर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर हैज़ बीन चैलेंज्ड थ्रू द हीबियस कॉर्पस पिटिशन. तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में हीबियस कॉर्पस पिटिशन के थ्रू आगे बढ़ी जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे अभी भी मैटर हैं जो कि पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में भी, राइट. और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर में आपको बताऊँ, जम्मू एंड कश्मीर के जो साफ फैजल है, ही वॉज अ IAS टॉपर, तो उनको भी जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके तहत जम्मू कश्मीर में डिटेन करके रखा गया है. राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई है कि अगर जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एक्सेस अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो एटलीस्ट इट्स अ ह्यूमन राइट. फॉर लास्ट 1 ईयर हुआ क्या जम्मू कश्मीर में, वैली में जो 4G सर्विसेज है उसको पूरी तरह से स्टॉप कर दी गई है. पीपल आर इधर गेटिंग 2G और 3G सर्विसेज, राइट. स्पीड काफ़ी कम कर दी गई है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे इंटरवीन किया, बट कोई टेंजिबल इफेक्ट नहीं दिखे, कोई कंक्लूसिव रिजल्ट इस पर नहीं दिखे हैं. और ये मैटर को आगे बेसिकली दिस हैज़ टू बी रिव्यूड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, बट कमिटी ने क्या किया, इसको होम सेक्रेटरी के पास भेजा है, राइट. एंड होम मिनिस्ट्री हैज़ एब्रोगेटेड आर्टिकल 370. तो बताया ये गया है कि एक स्टेप फॉरवर्ड जहाँ पे की जानी चाहिए थी कि मैटर को कैबिनेट सेक्रेटरी के जुरिसडिक्शन में रखा जाना चाहिए था, बट उनको होम सेक्रेटरी के पास भेज करके एक तरह से स्टेप बैकवर्ड लिया गया है इस डिसीजन को लेकर के, राइट. Now the other topic is UN policy on pandemic and its impact on education. तो बेसिकली पेंडेमिक का क्या सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है एजुकेशन पे, तो ड्रॉप आउट्स को लेकर के बात की गई है. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2. So the United Nations has released a policy brief on the pandemic that is on the impact of education. और ऑलमोस्ट बताया गया है कि 24 मिलियन चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो कि रिटर्न होंगे अपने वापस घर पे ड्यू टू इकोनॉमिक फॉल आउट इन द कोरोना वायरस पैंडमिक, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और जो गरीब लोग हैं दे कैन नॉट अफोर्ड द स्कूल फीस एंड अदर स्टफ्स, राइट. टॉकिंग अबाउट द अदर इम्प्लीकेशन ऑफ द COVID-19 ऑन द एजुकेशन सिस्टम, तो जो एजुकेशन की जो गैप है दैट इज लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3. दिस इज बाय ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनाइटेड नेशन पॉलिसी ब्रीफ के द्वारा. और यूनेस्को ने ये भी एस्टिमेट किया है कि जो 2.3 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन है वो ड्रॉप आउट करेंगे. सो दिस इंक्लूड द यूथ एज वेल. सो बच्चे और ऐसे लोग जो क्लास 10th के अंदर तक प्राइमरी एजुकेशन में है वो सारे लोग ड्रॉप आउट कर सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिटर्निंग टू द एजुकेशन आफ्टर स्कूल कैन लाइकली बी इवन ग्रेटर. तो प्रेजेंट में मोर देन 1.6 बिलियन जो लर्नर है अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन अफेक्टेड एंड डिस्टर्ब्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम. काफ़ी लोगों को, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है. And during the second quarter of the 2020, 86% of the children are at the primary level or out of the school and poor countries compared to the 20% in the high developed countries. तो दोनों में एक कंपैरिजन की गई है यूनेस्को के द्वारा कि अगर डेवलप कंट्रीज की बात करें तो 80 बेसिकली वहाँ 20% ही ड्रॉप आउट देखी जाएगी, और जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे जो ड्रॉप आउट है वो 86% तक देखी जा सकती है. नाउ गर्ल्स की, अगर गर्ल्स सेक्शंस की बात की जाए, गर्ल्स और यंग वुमेन दे आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड, उनको भी इक्वली अफेक्ट हुआ है. और कहीं ना कहीं जो वनरेबिलिटी है रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी और जेंडर बेस्ड वायलेंस वो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज पीपल विल नॉट फाइंड इट मोर सफिशिएंट टू गेट देयर एजुकेटेड चिल्ड्रन हायर एजुकेशन एंड दे विल अल्टीमेटली मेक द गर्ल्स चिल्ड्रन गेट मैरिड, और मैरिड के बाद दे विल हैव अर्ली प्रेगनेंसी जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाएगी, और उसके साथ के साथ जो जेंडर वायलेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगा. तो एक ट्रायंगुलर इसका इम्पैक्ट होने को मिल सकता है. Now also they do not अगर बात करें जो लर्निंग लॉसेज है, they have been severely in the foundational years and without remediation loss of learning can be 1/3. So इसमें बात की गई है जो ग्रेड 3 है वहाँ पे 72% के आसपास फॉल आउट देखी गई है, एंड ग्रेड 10 कैन बी द ड्रॉप आउट इवन लर्निंग एट एनी स्कूल लेवल. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल पे, जो क्लास 10th लेवल तक के बच्चे हैं वहाँ पे भी ड्रॉप आउट देखी जाएगी. तो ये जो सर्वे की गई है यूएन की तरफ से, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सर्वे वेयर यू कैन कोट इन जनरल स्टडीज पेपर 4 एज वेल. आप ऐसे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं.
Now, US suspend H-1B visas. So this is coming from the United States, and H-1B visa is again important for your prelims examination as well. और मेंस में भी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है या फिर जो इंडिया यूएस का रिलेशन है वहाँ पे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो यूएस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली सस्पेंड किया है न्यू वीज़ाज़ को काम के लिए. जो भी लोग बाहर जाते हैं इंडिया से बाहर, चाहे वो टेक्नोलॉजी के काम से हो या अदर सॉफ्टवेयर पार्ट्स के लिए, तो सारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं दे वुड बी नॉट बी एबल टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स. और जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है फेडरल एजेंसीज को कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है फॉरेन वर्कर्स को लेकर के वो सारे कैंसिल किए जाते हैं. तो यूएस गवर्नमेंट ने जो उनके जो फेडरली ओन्ड है टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए जिसको कहते हैं, उसमें भी आउटसोर्स जो 20% होने थे जॉब्स को लेकर के बाहर कंट्री से, जिसमें इंडिया का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, वो सारे कैंसिल कर दिए गए. और यूएस गवर्नमेंट ने कहा है इट विल नॉट टॉलरेट द फायरिंग ऑफ हार्ड वर्किंग अमेरिकन टू परसूट द चीप लेबर मार्केट. तो होता है क्या कि जो अमेरिकन के कंपैरेटिवली जो वेजेस है वो इंडियन को कम ही दी जाती है और इंडियन के कंपैरेटिवली वो काफ़ी हाई होती है, राइट. तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि हम वहाँ के लोगों को ज़्यादा काम देंगे बशर्ते कि दूसरे बाहर जो इमिग्रेंट वर्कर आएंगे. ना व्हाट इज H-1B वीज़ाज़ की अगर बात करें तो एक नॉन इमिग्रेशन वीज़ाज़ है जो यूएस अलाउ करती है कंपनीज़ को टू एम्प्लॉय द ग्रेजुएट जो वर्किंग होगा स्पेशल डोमेन पे काम करते हैं, जैसे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो या फिर आईटी फील्ड में हो, फिनांस हो, अकाउंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या मेडिसिन हो या कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको H-1B वीज़ा दिया जाता है. And any professional job that has usually required you to have a bachelor degree higher education that need an H-1B visa. ठीक है. और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और उसके आंसर आप हमें 6 PM तक भेज सकते हैं. ना बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ. तो जो पहला सवाल है उसका जो आंसर है वो है सी, दैट द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग अंडरस्टूड अबाउट द अर्ली ह्यूमन बीइंग, लाइफस्टाइल, habits, dietary activities and all understood about the mind and the thumb. और जो second statement है that is also correct, that the prehistoric remain witness the education and numerous weapons on the bones, right. So these are the two important explanation. This is from the NCERT. Now the second question का यहाँ जो correct answer है that is B. Now coming to the MCQs of the today question. So the first question is coming from culture. Consider the following statement with regards to rigorous प्रैक्टिस ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी मौर्यन डायनेस्टी में उसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. फर्स्ट, देयर वाज नो मल्टीपल फॉर्म ऑफ द वर्शिप एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड द सेकंड इज वर्शिप ऑफ याक्षगा एंड मदर गॉडेस वर प्रेवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस A, B, C और D. So write your answer in the comments down below. Now the second is from the history. Consider the following statement about the Morley-Minto reform. It barred the association of Indian with the executive council of the viceroy and the governor, and it accepted the separate electorate for India. So this is again a very important topic from Montemurlo. This is modern India. You have to choose the correct answer, that is A, B, C and D. So what you can do, you can select your correct answer, choose your correct answer and write your answer in the comments down below, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.